Hello students. In the last video we have discussed about the introduction, and regarding to that introduction we have seen some examples. In that introduction I have given you some formulas, and by using those formulas how to solve examples, that also we have discussed in the last video. Today we are going to discuss the next point of this lesson. The point is area of sector and segment of a circle. Area of sector and segment of a circle. What is meant by sector? What is meant by segment? How to find out the area of sector and area of this segment, that we are going to discuss today. Here I have written first point. The first point we are going to discuss now, sector. Let me tell you first of all what is meant by sector and which points are belongs to the sector. If you observe figure this figure carefully, then you will come to know that here I have written minor and major sector. Minor and major sector. The area which is related to the small space. Look here. Here if you will see AOB, and this portion is related to this minor sector. Minor sector means what? Small one. And major means what? Bigger one. Here AQB, suppose you will observe carefully, then this portion and this area is related to this sector, that is known as what? Major sector. Means area of the sector is nothing but, or the sector is nothing but, that is the part of the respective circle. If you'll observe, then you will come to know that because of this, because of those two radius OA and OB, this circle is divided in two parts. One part is the smaller one and one part is the bigger one. The smaller part is known as the minor sector. The smaller part is known as minor sector, and this bigger part is known as what? Major sector. Okay. Then if you'll observe, then you will come to know that here because of this OA and OB, there is the formation of angle. This angle AOB is called the angle of sector. This angle AOB is called as the angle of sector, or in other words it is said that this is known as the central angle. It is known as what? Central angle. And because of this central angle, this circle is divided in two parts. That is, first one is the minor sector and second one is the major sector. Means we can say here angle AOB is called as angle of sector, or central angle. Angle of sector or central angle. Then APB, if you'll observe, then you will come to know that this APB and this central angle, this together portion is known as minor sector. Okay, means like that OAPB, it is belongs to the central angle, that's why it is written OAPB is called as, is a minor sector. Means this is the small part of the circle. Okay, this is the small part of the circle and it is made up of this central angle, and remaining point is that one OAQB. AQB is a major sector, is known as what? Major sector. Try to understand what I said. Got idea over here? Okay. Here angle AOB is called as the angle of sector or central angle. Second point, here OAPB is known as the minor sector. Then OAQB is called as the major sector. And if you'll observe, then you will come to know that what? This this AOB is known as central angle. Then suppose anyone will ask us what is the measurement of angle of major sector. What is the measurement of angle of major sector? If you will see carefully, then you will come to know that this AOB is known as the central angle and this is known as angle of sector, but this angle is totally belongs to the minor sector, and this remaining angle, if you will see, then angle AOB only in a opposite way. If you will observe carefully, then you will come to know that angle of this angle is known as which one? AOB downside, that is known as angle of sector, that is belongs to the minor sector. But here there is one again angle, which one? AOB in that side, that is also known as angle of sector, that we can say angle of major sector. And suppose we want to find out the measurement of angle of major sector, then we can find easily like that. How? Look here, angle of major sector is equal to 360 degree
360 degree is the measurement of circle minus what? Angle AOB. When we will subtract, what we will subtract? We will subtract angle AOB from 360 degree, we will get angle of major sector. Then some of you, they may think, then what is the measurement of minor sector? What is the measurement of angle of minor sector? Suppose some of you, they may think like that. Now I have written here angle of major sector over here. What is written? Angle of major sector. But suppose someone will ask what is the measurement of angle of minor sector, then you will come to know that what is the measurement of angle of minor sector. Look here, angle AOB is called as the angle of sector or central angle. Okay, this angle of sector or central angle is nothing but measurement of, or the measurement of this central angle or measurement of this angle of sector is nothing but measurement of angle of minor sector. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, इधर मैंने क्या लिखा देखो, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर ऐसा लिखा है. तो माइनर सेक्टर के एंगल का मेजरमेंट क्या है? जो मेजरमेंट सेंट्रल एंगल का है, जो मेजरमेंट एंगल ऑफ सेक्टर का हमने बोला है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ माइनर सेक्टर. सॉरी, डू यू अंडरस्टैंड? अभी देखो फिर से रिपीट करता हूँ, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर की मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए 360 डिग्री में से हमें कौन सब्ट्रैक्ट करना है? एंगल AOB. एंड सपोज वी वांट टू फाइंड आउट एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, देन एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज नथिंग बट एंगल ऑफ सेक्टर और सेंट्रल एंगल. एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज नथिंग बट एंगल ऑफ सेक्टर और सेंट्रल एंगल. मीन्स एंगल ऑफ सेक्टर की और सेंट्रल एंगल की, एंगल ऑफ सेक्टर और सेंट्रल एंगल की जितनी मेजरमेंट होगी उतनी ही मेजरमेंट किसकी होगी? एंगल ऑफ माइनर सेक्टर. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Second, those are very important formulas you must remember. Okay, now we will think about the area of sector. Here I have drawn one figure. If you'll observe carefully, then same figure is there. Okay, APB, look here, APB, AQB. Okay, here there is the point Q, इधर point Q है. Okay, now see this figure carefully. If you'll observe, then you will come to know that here title is written area of sector. Suppose we want to find out area of sector, then for that purpose what we have to do? Okay, the area of sector of angle theta, when we are considering this angle is given us, and that angle is what? Theta. What is this? Angle theta. Then area of sector of angle theta is equal to theta divided by 360 into pi r square. फॉर्मूला लिखता हूँ देखो इधर, एरिया of sector of angle theta is equal to, what is formula? Theta divided by 360 into pi r square, into pi r square. Theta divided by 360 into pi r square means what? Theta divided by 360, theta means the central angle. Remember, you must remember this. Theta means this central angle. Okay, theta means this central angle, and 360, why this 360 is taken? Look this carefully. Theta means this central angle and 360 is taken because the total measurement of circle is what? 360. Means from those 360 we have taken this angle into area of this total circle. Means from area of circle, when we will take outside, from area of circle, when we will take outside area of this sector, area of this sector means क्या है? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. ऐसा ही क्यों बोला है? इधर एंगल थीटा क्यों बोला है? क्योंकि इधर दो एंगल है. कौन कौन से? ये मेजर सेक्टर का एक एंगल है और भी माइनर सेक्टर का एंगल है. अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो माइनर सेक्टर का जो एंगल है उसका डिस्कशन चल रहा है. ओके, और माइनर सेक्टर का जो एंगल है उसका डिस्कशन चलने के बाद जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया हम फाइंड आउट करने वाले हैं. समझ में आ रहा है? ये एंगल किससे बिलोंग्स करता है? माइनर सेक्टर से बिलोंग्स करता है. इसीलिए इधर लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. अभी थीटा डिवाइडेड बाय 360 ही क्यों? क्योंकि थीटा ये एंगल जो है, ये एंगल सेंट्रल एंगल बना है. और 360 क्यों लिखा है? क्योंकि सर्कल का जो टोटल मेजरमेंट होता है 360 डिग्री. समझ में आ रहा है? सर्कल का जो टोटल मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री. अभी देखो
इस एंगल से ये जो पूरा एंगल है इधर का ए पी बी, ये जो तुम्हें दिख रहा है इधर ए से स्टार्ट होके बी तक, इधर का जो एंगल है ये किसने कवर किया? थीटा ने कवर किया। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से लेकर बी तक जो एंगल है वो किसने कवर किया? थीटा ने कवर किया। अभी बाकी जो एंगल बचा है, ओके, वो कितना होगा? ये जो एंगल है, ये एंगल 360 में से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? बाकी का एंगल मिल सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अभी ये जो एंगल है ए से बी तक किसने कवर किया है? इस थीटा ने कवर किया है। तो एरिया फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना है? देखो, ओके, ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, इस सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करना है और उसको एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करना है। क्यों एरिया ऑफ सर्कल से ही मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि इधर इफ यू विल सी देन यू विल कम टू नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमने किससे निकाला है? सर्कल के टोटल एरिया से, पूरे एरिया से निकाला है। समझे? सर्कल के पूरे एरिया से वो पार्ट निकालने के कारण उसको सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई किया है। समझे? दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि ये जो ए पी बी तुम्हें दिख रहा है, इसकी अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, अभी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये जो ए पी बी है, लेंथ अभी फाइंड आउट करनी है तो इस सेक्टर अंदर हम नहीं जाने वाले, इधर ही हम देखने वाले। देखो ए पी बी, ये जो एरिया है, ए पॉइंट, पी पॉइंट और बी पॉइंट, इफ यू विल ऑब्जर्व देन यू विल कम टू नो दैट दोज ऑल पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. That's why length of an arc of a sector of angle theta is always related to the circumference of the circle, or area of sector is always related to the which area of circle. समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर किससे रिलेट होता है? एरिया ऑफ सर्कल से रिलेट होता है। अभी लेंथ ऑफ एन आर्क जो होती है वो लेंथ ऑफ एन आर्क सर्कमफरेंस से रिलेट होती है। फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो इधर लिख रहा हूं, length of an arc, what is written? Length of an arc of sector of angle theta, of sector of angle theta. ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इधर देखो फिगर में देखो, ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि ए पॉइंट, पी पॉइंट और बी पॉइंट जिस आर्क पे है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, ए पॉइंट, पी पॉइंट और बी पॉइंट जिस आर्क पे है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। और वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक क्लू भी दिया है इधर, क्या दिया है? देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, और वो जो आर्क है वो किस सेक्टर से बिलोंग्स करता है? किस सेक्टर से बिलोंग्स करता है? जिसका एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमें उस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो, हमें उस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। किस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है? जो देखो, जो थीटा एंगल है इधर, वो थीटा एंगल इस सेक्टर से रिलेट करता है। यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है जो सेक्टर से भी रिलेट करता है और दिस एंगल से भी रिलेट करता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है, देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझे? मैंने तुमको बताया लेंथ ऑफ एन आर्क है, ओके, तो लेंथ ऑफ एन आर्क किससे बिलोंग्स करता है? सर्कमफेरेंस से बिलोंग करता है। और एरिया ऑफ सेक्टर किससे बिलोंग्स करता है? एरिया ऑफ सेक्टर किससे बिलोंग्स करता है? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सेक्टर जो है वो सर्कल के पूरे एरिया में से निकाला जाता है और लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो सर्कमफेरेंस से ही निकाली जाती है। ओके, अभी बाकी की जो लेंथ बची है इधर से ए क्यू बी, ये जो पॉइंट्स है, ये जो लेंथ बची है वो मेजर होगी। अभी जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो माइनर होगी। लेकिन एक ही फॉर्मूला हमें इधर है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ओके, समझ में आया? ये दो फॉर्मूले हो गए। अभी एक तीसरा फॉर्मूला मैं तुम्हें देता हूँ। समझो, हमें अगर पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमने इधर जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखा है वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है।
अगर हमें पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला मैं इधर दिखा देता हूं तुम्हें। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके, इस फिगर में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन सा मेजर सेक्टर है, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी इज इक्वल टू, ओके। अभी सेक्टर का एरिया अगर फाइंड आउट करना है, मैंने तुमको बताया एरिया ऑफ सेक्टर इज ऑलवेज बिलोंग्स टू और क्लोजली रिलेटेड टू एरिया ऑफ सर्कल, ओके। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, मीन्स पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इधर माइनर सेक्टर कौन है, ओ ए पी बी, समझे। अभी आई थिंक तुम्हारे मन में जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे और तुम्हें समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ। तुम ऐसा भी सोच सकते हो सर एक ही स्टेटमेंट 3-4 बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर, इसके बाद हम पॉइंट्स स्टडी करने वाले सेगमेंट, सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है यही स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। समझ में आ रहा है, सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है यही स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, और बाद में एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं और सेगमेंट पूछा जाए तो सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए बार बार मैं एक स्टेटमेंट 2-3 बार क्यों बता रहा हूँ, यही इसकी वजह है। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ए ओ बी, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया सेक्टर होता है। यानी कि अगर तुमने देखा होगा पूरे सर्कल में से जब हम ये पार्ट्स निकाल लेंगे, व्हेन यू विल रिमूव दिस पार्ट, देन दैट इज नोन एज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड दिस इज द फॉर्मूला, ओके। और तुम्हें पता चलेगा पूरे सर्कल के एरिया में से हमने ये सेक्टर निकाला है, इसलिए फॉर्मूले में क्या है, देखो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, ओके। और वी कैन से ओवर हियर एरिया ऑफ सेक्टर इज बिलोंग्स टू द एरिया ऑफ सर्कल। एंड हियर लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में मैंने तुमको बताया, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क यानी कि ओनली सर्कमफेरेंस आता है उसमें, अंदर का पोर्शन नहीं आता, ओनली क्या आता है, सर्कमफेरेंस, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होती है, ओके। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है, सर्कमफेरेंस का है, ओके। अभी ये देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यानी कि ये बचा हुआ जो पार्ट्स है, बचा हुआ यानी कि ये पार्ट जो बचा हुआ है ए क्यू बी, ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, देखो पूरे एरिया जो सर्कल का एरिया है, फ्रॉम दिस टोटल एरिया ऑफ सर्कल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देन व्हाट विल गेट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। गॉट आइडिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अभी सेगमेंट देखो, फिगर में ही तुम्हें पता चलेगा, ओके। segment, if you'll observe carefully then you will come to know that segment means it is also part of the circle. Because of this chord AB, this circle is divided in two parts. This is the small part and this is the bigger part. This small part is known as minor segment and this bigger part is known as what, major segment, okay. Then we can say here APB is called as minor segment and AQB is called as major segment, okay. Got idea what I said, APB is called as minor segment and AQB is called as what, major segment. APB is called as, देखो इधर माइनर सेगमेंट और AQB इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट, अंडरस्टूड, ओके। अभी हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। एरिया ऑफ सेगमेंट APB, ध्यान से देखो उधर, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू, हाउ वी कैन फाइंड आउट, लुक ओवर देयर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यानी कि क्या, देखो जब हम इसको जोड़ देंगे
ध्यान से देखो इधर। अभी अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। माइनर सेगमेंट इधर से स्टार्ट होता है, ये ए बी जो कॉर्ड है ना, इसके नीचे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अभी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ऐसी सेम फिगर हमने इधर दिखी है, देखो समझे, सेम फिगर हमने इधर दिखी है। तो इधर मैंने ये पर्पसफुली नहीं ड्रॉ किया था, अभी मैंने ड्रॉ किया तुम्हें समझ में आने के लिए। ये एंगल क्या है, थीटा। जब तुम नोट्स में लिखोगे तो ये पूरी फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करो, ये भी दिखाओ, ओ ए और ओ बी ये भी दिखाओ। ओके, अभी तुम्हें समझ में आएगा। ये मैंने फिगर आधी फिगर क्यों ड्रॉ की थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। इधर भी सेम फिगर है, उधर भी सेम फिगर है, लेकिन इधर देखो ये है सेक्टर, ये पूरा सेक्टर होता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ये जो एरिया है इसकी बात कर रही है। ओके, अभी जो माइनर मैंने लिखा है ना इसकी बात अभी अभी चल रही है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन ओनली, दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट APB is equal to what I said, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी ध्यान से देखोगे तुम्हें पता चलेगा, इधर एक सेक्टर है देखो, OAPB, पूरा ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। उसमें से जब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें OAB, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा वो एरिया, क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू area of sector OAPB minus area of triangle OAB। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, OAB। ओके, तो फार्मूला ऐसा हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम इधर लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। ओके, अभी आगे जाएंगे। देखो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AQB, एम आई राइट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से जब हम ये माइनर सेगमेंट का क्या करेंगे, एरिया माइनस करेंगे। अभी इधर ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं आता, देखो ट्रायंगल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम माइनस करने वाले हैं, ये जो नीचे का पार्ट्स है ना ये माइनस करने वाले हैं, तो बचेगा जो पार्ट्स है दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसका ये फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो फॉर्मूलेज, तुम्हें समझ में आएगा पूरा। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई एम राइटिंग, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कौन सा एरिया मेजर सेगमेंट था उधर, AQB इज इक्वल टू व्हाट आई सेड, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये तुम्हें समझ में आना, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, गॉट आइडिया, अंडरस्टूड। ओके, ये है फॉर्मूलेज। इसके सिवा भी कुछ फॉर्मूलेज है, एक फार्मूला है उसका ऐसा जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं थेराटिकली, वो फार्मूला हम प्रूव भी कर सकते हैं। वो फार्मूला भी मैं इधर दे रहा हूँ तुम्हें। ओके, मैं इधर लिखता हूँ और, ओके, और के लिए फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट APB, एरिया ऑफ सेगमेंट APB
इज इक्वल टू, ओके, फॉर्मूला क्या है देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई, फॉर्मूला ऐसा है थीटा अपॉन 360 पाई माइनस थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आउटसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर, आउटसाइड द ब्रैकेट व्हाट, आर स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। जब मैं एग्जांपल्स लूँगा तो ये दोनों फार्मूले से एक एग्जांपल में तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम यूज़ करो, लेकिन जब तुम्हें कन्फ्यूजन होता है तो ये फार्मूला भी हम अगर यूज़ करते हैं तो ये भी करेक्ट फार्मूला है। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ विल गो टू वन एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर, दिस एग्जाम्पल आई विल शो यू एंड बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल आई विल ट्राई to explain this once again, those all formulas. Look here, find the area of the sector of a circle with radius 4 centimeter and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. Also find the area of the corresponding major sector means first of all we have to find out area of minor sector, then we have to find out area of major sector. Okay, कभी कभी ऐसा भी होता है, first of all students are finding area of minor sector, then they are finding area of circle, then they are finding area of major sector, ऐसा भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि हमें माइनर सेक्टर का एरिया किस में से माइनस करना होता है, एरिया ऑफ किस में से माइनस करना होता है, एरिया ऑफ सर्कल में से ही माइनस करना होता है। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस। सॉल्यूशन गिवन, व्हाट इज गिवन, find the area of the sector, look carefully, find the area of the sector of a circle with radius 4 centimeter, r is equal to 4 centimeter, theta is equal to, it is given in the figure also, figure ऐसी दी है एग्जाम्पल में 30 डिग्री। ओके, दिस मच ओनली गिवन, r is equal to 4 centimeter, theta is equal to 30 degree. Now what we will do, according to this figure we will find out first of all area of sector. Okay, what is formula area of sector, area of sector OAPB is equal to, what is formula, theta upon 360 into pi r square. Got idea formula, theta upon 360 into pi r square, थीटा की वैल्यू इधर है, आर की वैल्यू इधर है, पाई की वैल्यू 3.14 दी है, पुट करो और आंसर क्या आता है देखो। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अभी ये हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कैसे करना है देखो सॉल्व, 0 0 कैंसल, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, यानी कि ये क्या आ गया 1/12 आ गया इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, देयरफॉर ये अंदर डाल देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करके 12 से हमें क्या करना है 3.14 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 12, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ओके, जब हमें डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। 4.19 नहीं आता, समथिंग डिफरेंट आता है, ये डेसिमल पॉइंट में आता रहता है आंसर। ओके, तो डेसिमल पॉइंट में आंसर जब आता रहता है, इधर देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 3.14 इंटू 16 करके डिवाइड किया 12 से, तो ये डेसिमल पॉइंट आते ही रहते हैं आगे आगे। जब डेसिमल पॉइंट आगे जाते रहेंगे तो एक जगह हमें स्टॉप करना है
और स्टॉप करके अगर डेसिमल पॉइंट आगे भी जा रहे हैं तो ब्रैकेट में ओनली ऐसा लिखो, व्हाट, अप्रॉक्स, क्या लिखा है देखो, APPROX ऐसा लिखना है। ये कब लिखना है, अगर डेसिमल पॉइंट 4.19 के आगे भी आंसर आ रहा है, ओके, या ऐसे ही चला जा रहा है आगे, तो दैट इज नॉट एग्जैक्ट एरिया ऑफ सेक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट APPROX मीन्स अप्रॉक्सिमेटली। गॉट आइडिया? नाउ वी विल फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर। इधर हमें बोला है देखो, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ओके, दैट वी विल फाइंड आउट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या लिखा है देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस ये कितना आया है 4.19, 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अभी मल्टीप्लिकेशन, अभी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करके जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 46.05। क्या आंसर आता है 46.05। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। अभी आंसर इधर आता है 46.05। अभी एक बात ध्यान में रखो, जब हम डेसिमल पॉइंट देखते हैं और डेसिमल पॉइंट में 5 और 5 के आगे का नंबर अगर आ रहा है, समझो इधर 0.57 आ गया है, ओके, समझो मैं बता रहा हूँ 0.57 आ गया है, तो 7 को कैंसिल करके उस 5 में हम क्या कर सकते हैं, एक ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं। ऐसा इधर हम करेंगे 46 पॉइंट, अब ये 5 है, 5 और 5 के आगे चलता है, अब ये 5 को कैंसिल कर देंगे और इस 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर क्या आ गया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इधर हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है तो इधर भी हम क्या लिखेंगे APPROX लिख के डॉट देना है अप्रॉक्सीमेटली। गॉट आइडिया? तो ये सारे फॉर्मूलेज और ये सारी बातें जो है जो मैंने अभी एग्जाम्पल के बारे में बताई वो ध्यान से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताते जाओ, ओके, एनी डाउट वी कैन सी ओवर हियर। देखो कैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया है, फिर से दिखा रहा हूँ, ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। सेक्टर और सेगमेंट का जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करो। रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।